Hello and welcome all you English lovers, the aspirants of spoken English. This is Ashish Kumar. Welcome you all on our channel. Guys, we have been doing online classes, or we have been giving online classes for you so that you guys can speak fluent English, can speak English in public, can speak English to your colleagues, to your classmates, to anywhere, wherever you go. Even if you are talking with any officials, government officials, if you are talking to your family, relatives, or even if you are going for abroad or for any trip. Whenever and wherever you go, if you feel uncomfortable and if you feel inconvenient in speaking English, so this is the channel and this is the platform for you. And this is Ashish Kumar, and I guarantee you one thing: if you keep doing what tips, ideas, and the things that I share over here, definitely following this sort of things, you will have great mastery over speaking English. Means you will not only speak English fluently, with confidence, but correctly. This is the motto of this channel, and we are here to serve you at level best. Today, I am going to talk about making yourself a master of something. I would go bilingual. मैं दोहरी भाषा का प्रयोग करूंगा. I'll be using Hindi plus English as well because it's a spoken English platform. So definitely English would be spoken here. But since I'm here to teach you, and अगर आपको ऑलरेडी इंग्लिश आती ही होगी तो फिर आप इस चैनल पर क्यों आएंगे, इसलिए I'd also be speaking हिंदी at the same time. मैं हिंदी भी बोलूंगा ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाएं. तो आपने एक कहावत सुनी होगी इंग्लिश में, perhaps or probably you have heard about this proverb, jack of all trades. Jack of all trades. Do you know guys what is it? ये क्या होता है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स? तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड मींस अ पर्सन हु नोज ऑलमोस्ट एवरीथिंग बट नॉट मास्टर ऑफ एनीथिंग. मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो लगभग सब कुछ जानता है लेकिन थोड़ा थोड़ा, लेकिन किसी भी एक में निपुण ना हो, उसे महारत हासिल ना हो. दैट इज व्हाट यू कैन से जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स. For example, you can consider me jack of all trades regarding English. आप मुझे इंग्लिश का jack of all trades कह सकते हैं because मैं सारी चीजें इंग्लिश की जानता हूं, बट थोड़ी थोड़ी. I'm not a master of anything. मैं किसी चीज का मास्टर नहीं हूं. But you might have heard about any good author. आप किसी लेखक को जानते होंगे, उनका कोई एक चीज बड़ा ही बेहतरीन होगा. प्रोफेसर, किसी प्रोफेसर को जानते होंगे, आचार्य महोदय को जानते होंगे जो बहुत अच्छे होंगे. You might have any idea about some speakers of English as well. आप किसी ऐसे इंग्लिश के वक्ता को भी जानते होंगे जो द बेस्ट होंगे आपकी नजरों में. तो किसी का क्या है, लिटरेचर सेक्शन अच्छा हो सकता है, किसी का क्या है, रिटन सेक्शन अच्छा हो सकता है, किसी का क्या है, रीडिंग स्किल्स अच्छी हो सकती है, किसी का क्या अंडरस्टैंडिंग लेवल द बेस्ट होगा, और कोई बोलने में भी महारती हो सकता है. बोलने में भी तरह तरह की चीजों के अंदर किसी किसी की मास्टरी हो जाएगी. Take for example, I'm talking about a simple doctor, what you call an MBBS doctor. एक MBBS डॉक्टर जो होते हैं वो लगभग सभी रोगों का इलाज कर लेते हैं. But if you go a little ahead, जब आप आगे जाते हैं, ऊपर जाते हैं, तो then you start getting some serious experts of serious subjects. फिर आपको एक्सपर्ट्स मिलने लगते हैं हर चीज के. सर्जरी के लिए भी जनरल सर्जन है तो उसमें भी कोई पेडियाट्रिक सर्जन है, तो उसमें भी कोई ऑब्स्टेट्रिक सर्जन है, कोई ये सर्जन है, कोई बैरियाट्रिक सर्जन है. तरह तरह की चीजें उसके ऊपर चले जाएंगे तो आप मिलते चले जाएंगे. मतलब एक एक छोटे विषय के भी आपको एक्सपर्ट डॉक्टर्स मिलते हैं. In the same way or likewise, you will get lots of teachers of English language. Some of them may be a great speaker, some of them may be a great literaturist. किसी का accent बहुत अच्छा हो सकता है, कोई phonetics का expert हो सकता है, कोई किसी चीज का, some of them might be very good writer of English, वो writers हो सकते हैं. तो there are so many things in English that one can have mastery over it. एक अंग्रेजी विषय देखने में भले ही एक विषय लगता है, लेकिन इसके अंदर छोटे छोटे कई सारे ऐसे विषय हैं जिसमें कोई एक मास्टर बन सकता है. Why am I saying so? मैं ये क्यों कह रहा हूं? आपको तो अभी इंग्लिश आती भी नहीं. आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जिनको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती होगी. शायद आप में से बहुत सारे लोग पहली बार मेरी वीडियो देख रहे होंगे. तो to them I would like to tell you one thing first, कि please do subscribe our channel, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को, क्योंकि ऐसे ही बहुत सी मजेदार चीजें, मजेदार टॉपिक्स पर मैं आपको बताऊंगा, टिप्स दूंगा, हिंट्स दूंगा और आइडिया दूंगा, ताकि आप हर तरह की, हर जगहों के अनुसार इंग्लिश को बोल लें. When you are in Rome, do as the Romans do. ये मेरा मानना है. जैसा देश वैसा वेश, यानी आप जहां जाए उसके हिसाब से वैसे इंग्लिश बोल लें. अगर आपके अंदर ये काबिलियत आ गई तो यस, यू आर अ डैम गुड स्पीकर.
or I must say you are a orator. And now what is the difference between a speaker and an orator? I will let you know in other classes. मैं आने वाली वीडियोस में इन सारी चीजों को बताऊंगा कि क्या फर्क होता है स्पीकर में, ओरेटर में, वगैरह वगैरह, प्रेफर, लाइक, इन सबों में क्या तुलना है, दोनों का मतलब पसंद करना ही होता है। तो ऐसी चीजों पर भी विल मेक वीडियोस, बट ओवर हियर आई एम हियर टू टॉक अबाउट सर्टेन थिंग्स कि आप जो इंग्लिश सीखना शुरू कर रहे हैं, यू माइट बी फीलिंग अनईजी, आपको बड़ा ही अजीब लगता होगा, यू माइट नॉट बी गेटिंग आइडिया, आपको कई बार आइडियाज नहीं मिलते होंगे, आप कई बार कई स्पोकन इंग्लिश सेंटर्स से जाकर के वापस आ गए होंगे, थक गए होंगे, एंड स्टिल यू आर नॉट गेटिंग एनी रिजल्ट, और आपको अभी तक रिजल्ट नहीं मिला होगा। तो व्हाट टू डू नाउ, क्या करें? आप ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखते हैं तो कई बार आपको लगता है कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा, तो क्या करें? अगर इसका सॉल्यूशन आपके पास नहीं है तो आज बने रहिए हमारी वीडियोस के साथ। आज की हमारी वीडियो बिल्कुल इसी चीज पर है, इसे लास्ट तक देखें, तभी जाकर के आपको चीजें समझ में आएंगी। बीच में स्किप कर करके देखेंगे तो मुझे लगता है आप चीजों को मिस कर जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं आज की क्लास के बारे में। आज का हमारा जो क्लास है वो इसी बात पर है कि आप क्या करें। तो देखिए, मुझे लगता है कि किसी भी एक विद्यार्थी को एक साथ सारी चीजें नहीं ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि एक साथ सारी चीजें ट्राई करेंगे तो आप मेरी तरह ही हो जाएंगे, सब में थोड़ा थोड़ा हो जाएंगे, लेकिन मास्टर किसी में नहीं हो पाएंगे। तो मैंने क्या करा, इंग्लिश को या स्पोकन इंग्लिश को 4 चीजों में बांट रखा है। पहला, मेरे हिसाब से आप काम कर सकते हैं अपने फ्लो के ऊपर, या इसे आप फ्लुएंसी कह सकते हैं। यू मे स्टार्ट वर्किंग अबाउट दिस वन फर्स्ट। Means whatever I'm trying to tell you is, okay, whenever you speak like very fast, speak like an expert, speak like a person who speaks very fast and who can't be understand, who sometimes be illegible or sometimes he can't be understood, and whenever he speaks people find it very difficult to understand what he's trying to say। एक ये तरीका आप कर सकते हैं कि इसी तरह से तेजी से आप अंग्रेजी बोलने लग जाएं, यानी आप ज्यादा से ज्यादा अपना फ्लो पर काम करना शुरू करें, अपने स्पीड पर काम करना शुरू करें। कई बार क्या होगा कि आपकी स्पीड की वजह से पीपल विल लव टू लिसन टू यू, लोग आपको सुनने में बड़ा ही पसंद करेंगे। दे वुड डेफिनेटली थिंक दैट व्हाट इज स्पीड ही हैज, व्हाट काइंड ऑफ अ स्पीड ही हैज गॉट, बॉय ही इज टू गुड। बोलेंगे बड़ा अच्छा है ये बंदा, यार क्या बोलता है, उसके फ्लो की वजह से। समटाइम्स यू मे हैव सम ग्रामेटिकल मिस्टेक्स इन देम, कई बार क्या होगा आपका कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक निकल आएगा। समटाइम्स यू मे मिस्टेक सम प्रोनाउंसिएशन एरर्स, कुछ आपको उसमें से प्रोनाउंसिएशन एरर्स आ जाएंगे, बट वो सब पे एक बारी पर्दा पड़ जाएगा अगर आप ये ज्यादा अच्छा कर लेंगे तो इफ यू थिंक कि मुझे फ्लो पर काम करना चाहिए, मेरा एक ही मकसद है, एक ही मोटिव है, दैट टू स्पीक फास्ट इन इंग्लिश, टू स्पीक फ्लुएंट इन इंग्लिश, तो आप इस पर अपना पूरा फोकस करें। शुरू में सबसे ज्यादा ध्यान आप इस पर लगाएं, बाकी चीजों पर ध्यान थोड़ा कम लगाएं, तो धीरे धीरे आपकी इस पे मास्टरी हो जाएगी। दूसरी चीज अकॉर्डिंग टू मी इज एक्सेंट, or you may say pronunciation. If you think that you are a slow goer, if you think that you cannot work on your speech, अगर आपको लगता है कि आप अपने स्पीड पर काम नहीं कर सकते, basically I belong to Bihar and over here I find people speak so slow because of their native language. हमारे यहाँ जो लोग होते हैं वो काफी धीरे बोलते हैं उनके नेटिव लैंग्वेज की वजह से। Like I speak Bhojpuri basically because I belong to Bhojpur district, so I speak Bhojpuri, and over here I find my people, my mom, my dad, other people who are surrounded me, and I'm surrounded by them, I must say. So whenever they speak so slow. वो बहुत धीरे धीरे बोलते हैं, का हो का हलबा, समथिंग लाइक दैट। वो ऐसा नहीं बोलते का हो का हलबा, ऐसा नहीं बोलते वो। तो ये स्पीड का पंगा है हमारे यहाँ जो है ना, सारे स्लो गोवर्स है, बड़े धीरे धीरे बोलते हैं। तो उनके साथ अगर हम लोग फ्लो की बात करें तो वो भोजपुरी फ्लो में नहीं बोलते, हिंदी फ्लो में नहीं बोलते, तो इंग्लिश फ्लो में कैसे बोलेंगे? काफी मेहनत लगेगी उनको, कर तो सकते ही हैं, बट दे विल टेक लॉट ऑफ टाइम टू गेट ओवर इट, टू हैव कंट्रोल ओवर इट। तो कंट्रोल करने के लिए उनको काफी समय लगेगा। तो दे कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन देयर एक्सेंट और प्रोनाउंसिएशन, वो अपने उच्चारण पर, सुर ताल पर अपना काम करना शुरू कर सकते हैं। एक्सेंट या प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छी चीज है, and if you speak English in a correct way, if your accent and pronunciation is so good, people would also love to listen to you, लोग फिर आपको सुनना पसंद करेंगे। Now if I go by an example, अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं तो this is a word what I find people here speak incorrectly, लोग हमारे यहाँ इसको बड़ा ही incorrectly pronounce करते हैं। Sometimes people pronounce it भान, sometimes भेन, but nobody pronounce it van.
Why is that so? Because they do not know that it is not we, it is we. उनको ये पता ही नहीं है कि इंग्लिश में भ के लिए BH से लिखना होता है, ये होता है हमारा भ, ये तो we है, और इसे जब भी प्रोनाउंसिएशन होगा वो से होगा. They do not say that. Let me take for a few my other example. This one, LAW. पहले तो W नहीं बोलते, W बोलते हैं. This is also the pronunciation errors. वो भी pronunciation error है अगर आप उसको W बोलते हैं. It's W. तो W होता है. तो from that point of view it is law. But हमारे यहाँ कई लोग, मैंने सुना, इसे pronounce करते हैं law. SAW, the second form or the past form of C, it's saw. But people pronounced sa. तो ऐसा जब आप प्रोनाउंसिएशन करके आप इंग्लिश बोलोगे तो यू पीपल विल मेक फन ऑफ यू, लोग आपका मजाक उड़ा देंगे, दे मे लाफ एट यू, आप हंसने लग जाएं. तो मेरा सजेशन है कि अगर आप ये नहीं कर सकते, अगेन सजेशन, मैंने सजेशन नहीं बोला. सी, दिस इज ऑल अबाउट प्रोनाउंसिएशन, दिस इज नॉट सजेशन. फ्रॉम एनी पॉइंट ये सजेशन नहीं है. और हमारे जो और खराब प्रोनाउंसिएशन करने वाले लोग हैं, सजेशन, ये सजेशन नहीं है, ना ही सजेशन है. तलाबिश सजेशन भी नहीं है, इट इज सजेशन. सजेशन, इसमें च छुपा हुआ है, एंड इट इज सजेशन. मैं ऐसे हवा में नहीं बोल रहा हूं. whatever I teach, whatever I say, I have done lots of research on that, और काफी रिसर्च करने के बाद ही मैं अपनी बातों को रखता हूं. एंड फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ व्यू इफ यू फील कि ये गलत है, आप उसको प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और मैं उसको देखूंगा कि कहां से गलत है. चांसेस बहुत कम है लेकिन हो भी सकता है. और अगर आपको चेक करना है तो किसी भी डिक्शनरी में जाकर के, डिक्शनरी के किसी भी प्रोनाउंसिएशन चेकर में जाके इसको चेक करिए. यू विल गेट टू नो इट्स सजेशन, इट्स नॉट सजेशन. हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे प्रोनाउंसिएशन एरर मैं बताता चलूंगा तो बहुत सारे हो जाएंगे. जैसे ये वन, इसको हमारे यहाँ लोग बायोलॉजी बोलते हैं. इट्स बायोलॉजी, इट्स नॉट बायोलॉजी, लेकिन हमारे लोग बोलते हैं बायोलॉजी. साइकोलॉजी को लोग हमारे यहाँ साइकोलॉजी बोलते हैं. तो देयर आर सम सॉर्ट ऑफ प्रोनाउंसिएशन इश्यूज विद देम. और मैं किसी की टांग नहीं खींच रहा, मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यू कैन आल्सो वर्क ऑन योर प्रोनाउंसिएशन. आप अपने प्रोनाउंसिएशन पर भी काम कर सकते हैं. इफ यू स्पीक स्लो, अगर आप स्लो बोलते हैं, बट इफ यू स्पीक विद करेक्ट एक्सेंट, विद अ डिस्टिंक्टिव एक्सेंट आई मस्ट से, तो फिर लोग आपको ध्यान से सुनेंगे. Day after tomorrow maybe I will call my junior, my some subordinate employee you must say, or subordinate teacher of mine, Mr. Shoaib. I would definitely call once over here to record a video on especially accent. मैं उनको बुलाऊंगा और accent के ऊपर भी मैं ट्रेनिंग वीडियोस बनाऊंगा. आप देखेंगे कि accent के ऊपर फर्क कैसे करना है और कैसे फोकस करके आप अपने accent या pronunciation को ठीक ठाक कर सकते हैं. आने वाले दिनों में प्रोनाउंसिएशन के और भी वीडियोस बनेंगे. फ्लो को कैसे बनाएं इसके लिए भी और भी वीडियोस बनेंगे. आज उसको हम लोग समराइज करके आपको बतला रहे हैं, इसलिए आज इतना ही रखेंगे कि अगर फ्लो नहीं ठीक कर सकते तो हमें ठीक कर लेनी चाहिए अपनी एक्सेंट या प्रोनाउंसिएशन, और आप बहुत ही उसको अच्छे से बोलेंगे तो सुने जाएंगे. मुझे एक बंदी का प्रोफाइल याद आ रहा है, वो बड़ा ही पॉपुलर हुई है यूट्यूब वगैरह पर, में बहुत वायरल हुए हैं उसके वीडियो, कि वो 7-8 एक्सेंट बोल लेती है. मतलब कि वो इंग्लिश को ही कई तरीके से पहले बोल लेती है कि अगर उसको रशियन एक्सेंट में बोला जाए तो कैसे होगा, इंडियन एक्सेंट में कैसे होगा, अमेरिकन एक्सेंट में कैसे होगा, ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट में कैसे होगा, और कई जगहों की भाषा भी वो बोल लेती है. उसकी मैंने वीडियो देखी थी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, और उसे लोग चाइल्ड प्रोडिजी भी कहते हैं. तो वो काफी पॉपुलर हुई थी. वो पॉपुलर क्यों हुई? एक्सेंट की वजह से. तो अगर आप भी चाहें तो अपने एक्सेंट पर काम करके अपना एक्सेंट ठीक कर ले. यह भी एक तरीका है अपने आप को नोटिस में लाने का. आपको लगता है चलो मेरी फ्लो भी ठीक नहीं हो सकती, आई एम नॉट गुड एट इट एंड आई कांट हैव द फ्लो सॉर्ट ऑफ थिंग्स इन मी, लेट इट बी. अगर आपको फ्लो ठीक नहीं हो सकता, आपको लगता है, छोड़ दीजिए. एंड अगेन इफ यू थिंक कि दो आई एम नॉट गुड एट फ्लो एंड आई आल्सो कैंट अफोर्ड टू हैव अ गुड प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि मेरी जबान टेढ़ी हो जाती है, मुझे नहीं पसंद इसको करना, मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं, मुझे ये करना ही नहीं है, छोड़ दो, कोई बात नहीं, दोनों खत्म कर देते हैं. आते तीसरे वाले पर, जो कि है वर्ड्स, और आई मस्ट से वोकैबुलरी. आपने क्या ठीक कर लेनी है? अपनी वोकैबुलरी, यानी आपने कमांड कर लेना वर्ड्स पर. डिफरेंट सॉर्ट ऑफ वर्ड्स यूज करना शुरू करें. किसी भी नॉर्मल वर्ड्स को बोलने की बजाय आप उसके जगह पे डिफिकल्ट वर्ड यूज करना शुरू करें. हालांकि आम बोलचाल में लोग थोड़ा सा उससे एजिटेट होंगे, थोड़ा सा चिढ़ेंगे, गुस्सा होंगे, बट दे विल आल्सो एडमायर यू एट द सेम टाइम. वो आपको एडमायर भी करेंगे कि यार व्हाट सॉर्ट ऑफ वोकैबुलरी ही हैज, ही हैज गेट ग्रेट कमांड ओवर वर्ड्स. यार एक चीज के लिए इसके पास कितने सारे वर्ड्स हैं,
मतलब यूनिक वर्ड्स यूज कर करके भी यू कैन लीव एन इंप्रेशन। हालांकि इसमें ये तो है ही कि आपको कुछ लोग उंगली करेंगे। लाइक आई वुड लाइक टू साइट एन एग्जांपल, वंस आई मेट अ टीचर who was hosting in a function, वो एक फंक्शन में होस्ट कर रहे थे, एंड ही सेड कि there is a plethora of knowledge over here on the stage। तो बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आया प्लेथोरा। देखिए, दिस इज द वर्ड आई एम टॉकिंग अबाउट, PLETHORA, प्लेथोरा। तो उन्हें नहीं समझ में आया कि प्लेथोरा मतलब क्या होता है। तो प्लेथोरा का मतलब भंडार होता है, बहुत सारा कोई चीज एक जगह इकट्ठा हो जाना, दैट इज प्लेथोरा। तो इज इट एन इंग्लिश वर्ड? नो, ऑफ कोर्स नॉट। दिस इज नॉट एन इंग्लिश वर्ड एट ऑल, दिस इज अ ग्रीक वर्ड। ये एक ग्रीक वर्ड है प्लेथोरा। आपने बहुत सारा सुना होगा, यूरेका, क्यूडोस, ये सब जो वर्ड्स हैं, डेटम, एजेंडम, ये सब जो वर्ड्स हैं, दे आर क्राइटेरियन, क्राइटेरिया, स्टेडियम, स्टेडिया, ये सब जो वर्ड्स हैं, दे आर नॉट मेनली इंग्लिश वर्ड्स, दे आर फ्रॉम फॉरेन ऑरिजिन। ये फॉरेन ऑरिजिन के वर्ड्स हैं। तो अगर आपको इसी तरह वर्ड्स पर कमांड है, इफ योर वोकैबुलरी इज रिच, आपकी वोकैबुलरी काफी अच्छी है, तो आप इंग्लिश बोलते वक्त स्लो ही बोलें, थोड़ा सा आप एक्सेंट गलत ही बोल लें। प्लेथोरा मेरी तरह ना बोल करके आप पहले थोड़ा ही बोल लें, पहले थोड़ा ऐसा भी बोलेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग आपके एक्सेंट से ज्यादा उस वर्ड पर ध्यान देंगे कि आपने बोला क्या है, एंड दे विल स्टार्ट डूइंग अ रिसर्च ऑन इट। वो उस पर रिसर्च करना शुरू कर देंगे, एंड एट द सेम मोमेंट यू आर हैविंग सम सॉर्ट ऑफ renownedness, you are becoming a little famous। आप फेमस होना शुरू हो जाएंगे इसकी वजह से। तो अगर ये दोनों नहीं हो सकते तो आप ये स्ट्रॉन्ग कर लो। ये तीनों ही आपको लगता है कि बड़ा कॉमन सा चीज है, यार सारे करते हैं, मैं क्यों करूं, सारे तो करते हैं, मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए। तो जो एक्स्ट्रा करने वाले हैं, ये रहा उनके लिए चौथा चीज, which is idioms and phrases, और you may say proverbs। आप सीधी बात बोलना छोड़ दीजिए, आप अपनी बातों को मुहावरे, कहावतों में बोलना शुरू कर दीजिए। बात बात पर में आप हर चीज के लिए मुहावरे, जैसे आपने किसी को कहा कि तुमको कुछ आता जाता नहीं और दूसरे में ही बुराई निकालते रहते हो, तो ये बात बोलने की बजाय आपने उसको हिंदी में कह दिया कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तब वो समझ जाएगा कि बोलना क्या चाह रहे थे। आपने ये सीधे सीधे नहीं कहा उसको कि कुछ आता जाता तो है नहीं, दूसरे पे खाली निकालते रहो, उसकी चुगली करते रहो। इतना लंबा ना बोल करके बस आपने इतना ही बोल दिया कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इसका मतलब ये हो गया, इसको अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो इसका इंग्लिश में बना हुआ है कि बैड कारपेंटर ऑलवेज क्वारल्स विद हिज टूल्स। ये इसका इंग्लिश में बना हुआ है, लोहा ही लोहे को काटता है। आपने ऐसा प्रॉवर्ब मार दिया, तो उसको इंग्लिश में कहना होता है डायमंड कट्स डायमंड, ऊंचा दुकान फीका पकवान। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं, अधजल गगरी छलकत जाए, ऊंट के मुंह में जीरा, ये सबकी इंग्लिश बनी हुई है, सबकी इंग्लिश बनी हुई। ऊंट के मुंह में जीरा, ड्रॉप इन द ओशन, अधजल गगरी छलकत जाए, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, इस तरह से सबकी इंग्लिश बनी हुई है। तो आप इसी तरह से ढेर सारे इडियम्स, फ्रेजेस, जैसे बैंक ऑन। बैंक ऑन का मतलब क्या होता है? तो बैंक मतलब तो आप कहेंगे वो बैंक होता है जहां पैसे जमा किए जाते हैं। बैंक ऑन का मतलब होता है भरोसा करना, विश्वास करना। पार्ट एंड पार्सल, पार्ट एंड पार्सल का मतलब क्या होता है? पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है अभिन्न अंग। जैसे स्लेजिंग इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ क्रिकेट, मतलब छींटाकशी करना ये तो क्रिकेट का अभिन्न हिस्सा है। एक बार बोला था एक बहुत बड़े क्रिकेटर ने, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, तो उन्होंने कहा था कि स्लेजिंग इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ क्रिकेट। क्रिकेट का पार्ट एंड पार्सल अभिन्न हिस्सा है स्लेजिंग। बिना छींटाकशी किए तो क्रिकेट खेला नहीं जा सकता। तो इस तरह से जो मैंने आपको अभी इडियम्स एंड फ्रेजेस बताए, तो ये सब जो हैं, ये अगर आप इसका स्टॉक कर लें अपने पास और आप बोलते वक्त सबसे ज्यादा ये यूज करें, तो भी आप एक यूनिक पर्सनालिटी में गिने जाएंगे। आपकी एक यूनिक कॉम्बिनेशन हो जाएगी कि आप ज्यादातर चीजों को इस तरह से बोलते हैं। और जो अच्छे इंग्लिश लर्नर्स हैं, जिनको अच्छी इंग्लिश आती है, वो डेफिनेटली इन चीजों को समझेंगे। और जिन्हें नहीं पता है वो या तो डिक्शनरी यूज करेंगे या कई बार आपसे पूछेंगे, और जब आपसे पूछेंगे आप उसको एक्सप्लेन करेंगे तो वो वाहवाही आपकी हो जाती है कि यार बड़ा अच्छा इसको जानकारी, यार बड़ा अच्छा चीज जानता है ये। तो एट द सेम मोमेंट यू विल गेट डेफिनेटली। मुझे याद आ रहा है कि आई हैड अ स्टूडेंट, एक समय में एक स्टूडेंट थी मेरी, शी समटाइम्स यूज्ड टू हैव वेरी मेनी फ्रेंच वर्ड्स। वो अपना जब भी क्लास में बातें करती थी तो बच्चे से परेशान रहते थे क्योंकि बहुत सारे फ्रेंच वर्ड्स यूज करती थी। मैंने उसके फ्रेंच वर्ड्स यूज करने की टेक्निक से ही कई सारे खुद भी वर्ड्स सीख लिए। तो समटाइम्स आप न सिर्फ इन चीजों पर कमांड करते हैं अपने लिए, बल्कि दूसरे भी आपसे कई बार इससे सीखते हैं। तो ओवरऑल व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि अगर आप ओवरऑल स्पीकर की बात करें तो आपके अंदर तो ये चारों क्वालिटीज होनी चाहिए।
but it is not possible for everyone to have all sorts of qualities in him. हर कोई अपने अंदर सारी क्वालिटीज तो नहीं ला सकता। अच्छा, लाए भी तो हो सकता है किसी में बहुत बेहतर हो और किसी में कमजोर हो। Now I'm leaving up to you, those who have been attending my class for last few many days. I would like you to comment this on this particular topic कि आपको क्या लगता है, what am I good at? मैं किस चीज में अच्छा हूं? आप लोगों में से जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, प्लीज डू कॉमेंट इट। Am I good at flow? Or my accent is better? Or I would say I have got a good quality words? Or I have got a great plethora of idioms and phrases? आपको क्या लगता है? आप इस पे कमेंट करें। मैं भी जरा जानना चाहूंगा कि मेरे अंदर कौन सी चीजें आपको लगता है कि सबसे ज्यादा है। हालांकि आई पर्सनली फील दैट आई एम अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। मुझे लगता है कि मैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स हूं और मुझे सारी चीजें तो नहीं आती हैं, लेकिन मुझे सारी चीजों में से थोड़ा थोड़ा सब आता है, ऐसा कुछ मुझे लगता है। बट इट्स अप टू यू। खैर, आपको क्या लगता है ये तो आप मुझे बताएंगे ही, लेकिन मुझे क्या लगता है कि आप में से जितने हैं उनमें से इन चारों चीजों में से किसी एक चीज पर मास्टरी पहले हासिल करनी चाहिए। इट्स लाइक कि आप अगर 10th का एग्जामिनेशन देना चाहते हो तो यू हैव टू गो थ्रू क्लास 1 फर्स्ट, क्लास 2, 3, 4, ऐसे करते करते ही आप 10th तक पहुंचेंगे। स्ट्रेट अवे यू कैन नॉट गो थ्रू टू टेक एन एग्जामिनेशन ऑफ 10th। आप सीधे सीधे 10th की एग्जामिनेशन तो क्रैक कर नहीं सकते या दे ही नहीं सकते। देयर इज अ प्रोसीजर एंड प्रोसीजर, प्रोसेस एंड प्रोसीजर, उसके लिए प्रतिक्रिया है, प्रक्रिया है, तो आपको वो करना होगा। तो आप इसमें से किसी एक चीज पर पहले मास्टरी कर लें। सही, आप मान लीजिए इसके ऊपर 2-3 महीना तक मेहनत करें। जब आपको लगने लगे कि ये काफी बेटर हो गया तो फिर इसमें से किसी एक पर चुनाव कर लें। जब वो लगने लगे कि ये भी बेटर हो गया तब इस पर आए, तब उस पर आए। इस तरह से करके आप काम करेंगे तो मुझे क्या लगता है कि आफ्टर 1 year ऑफ plodding efforts or after 1 year of labor, I personally feel that you will also have amount of knowledge what I possess. आपको उस तरह की ही knowledge हो जाएगी। You'll not only be a very good speaker in terms of flow, but also you'll have a very good accent, pronunciation. You may also be using great quality words along with some great idioms and phrases or master expressions. Quotes, आपको quotes के सारे याद हो जाएंगे क्योंकि ये सारी चीजें हो जाएंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं मेरे लिए एक ही चीज बना है, तो पहले आप वही करें। इस 4 में से जो आपको लगता है पहले वही करें। आप देखें कि पहले आपको उसमें कॉन्फिडेंस आती है कि नहीं। अगर उसमें कॉन्फिडेंस आ गई तो विश्वास मानिए कुछ दिन बाद खुद ही मन कहेगा कि चलो अब दूसरा भी ट्राई करते हैं, क्योंकि वो तो मुझसे होने लगा। और अगर ना भी हुआ तो कोई भी बात नहीं, कम से कम किसी एक पर तो आप एक्सपर्ट हो ही जाएंगे। So this is my personal feeling about everyone, that they should work on these 4, but one by one is the process. I hope these things will definitely matter in your learning. ये चीजें आपको सीखने में मददगार हों। And if you have definitely started watching our videos, I personally feel that you will definitely get some sort of confidence in you at the same time some sort of knowledge in you as well. आज के लिए मैं बस इतना ही रखूंगा और आई होप यू गाइज हैव एंजॉयड इट। अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, इफ यू आर वाचिंग आवर वीडियो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट लेटेस्ट अपडेट्स एंड इंफॉर्मेशन अबाउट आवर रेगुलर क्लासेस। और अगर आपको कोई परेशानी है तो यू कैन ड्रॉप ए कॉमेंट ऑन माई कॉमेंट बॉक्स। आप कॉमेंट लिख दें। आई वुड डेफिनेटली बी फीलिंग हैप्पी टू सर्व यू फ्रॉम माई लेवल बेस्ट। जितना मुझसे संभव होगा मैं आपकी समस्याओं का समाधान भी करने की कोशिश करूंगा। और बहुत सारी वीडियोस हम लोगों ने अपने चैनल पर बनाकर रखी हुई है। आपको जिस विषय पर चाहिए वो देख लें। अगर ना हो, अगर किसी और विषय पर आप चाहते हैं कि हमें आपकी क्लासेस बनानी चाहिए, देनी चाहिए, तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। हम लोग जल्द ही आपसे उस तरह की चीजों के साथ भी मिलेंगे। सो अगेन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव कॉन्फिडेंस इन यू. Thanks for watching this series. This is Ashish Kumar signing off and meet you with some new things in some new classes. Thanks for watching. Have a great day, guys.